In this session, we discuss a case study of Pseudomonas. So let us first read out the case statement. A 55-year-old man was admitted to a hospital with 65% burns following an accident in kitchen. The infected pus from the skin showed Pseudomonas aeruginosa by culture. The patient was treated for 7 days with broad-spectrum antibiotics. On 8th day of hospitalization, the patient experienced fever and chill. The blood cultures were repeatedly positive for Pseudomonas aeruginosa. The patient succumbed to the infection and died after 15 days. Now, before we discuss the questions, just have a look at the main points in the case study which are hinting towards Pseudomonas aeruginosa, which are correlating with the diagnosis. क्योंकि डायग्नोसिस तो उन्होंने बता ही दिया है केस में Pseudomonas aeruginosa, पर कौन से पॉइंट्स हैं जो रिलेवेंट है उसके संदर्भ में. एक तो बर्न्स का पेशेंट है, ठीक है, तो Pseudomonas causes infection in burns patients. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ इन्फेक्शन इन बर्न्स पेशेंट. फिर कल्चर में उनको Pseudomonas मिला और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ किया गया और उसके बाद भी फीवर और चिल्स था पेशेंट को, यानी कि ड्रग रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है पेशेंट को. तो ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन ऑफ Pseudomonas हुआ और कल्चर में उनको रिपीटेडली Pseudomonas मिला है, तो रिपीटेड कल्चर से भी कंफर्म हो जाता है कि वही ऑर्गेनिज्म है. और फाइनली द पेशेंट सकम टू इन्फेक्शन. नाउ बर्न्स के पेशेंट में Pseudomonas इन्फेक्शन करता है, ये अपने को खास याद रखना है. और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ Pseudomonas. नाउ वी हैव ए लुक एट द क्वेश्चंस वन बाय वन. What are the factors that increase susceptibility of the patient to Pseudomonas aeruginosa infection? कौन से फैक्टर से ससेप्टिबिलिटी बढ़ती है? तो एक तो पेशेंट इज एडमिटेड. सबसे पहले तो पेशेंट बर्न्स का पेशेंट है, तो बर्न्स के पेशेंट में Pseudomonas का इन्फेक्शन होने के चांसेस हाई है. फिर बर्न्स का पेशेंट है, वो एडमिट होता है और लॉन्ग टर्म स्टे रहता है हॉस्पिटल में. तो लॉन्ग टर्म स्टे रहेगा हॉस्पिटल में तो Pseudomonas इन्फेक्शन एक्वायर करने का रिस्क बढ़ेगा ही, क्योंकि Pseudomonas इज़ प्रेजेंट इन मेनी प्लेसेस इन द हॉस्पिटल, इन द सिंक, इन ऑन द बेड, ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स, एवरीवेयर इट इज़ प्रेजेंट एट मेनी प्लेसेस. तो ऑन द पेशेंट इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम बिकॉज पेशेंट इज़ ऑफ बर्न्स. तो फिर ये सारे फैक्टर्स विल कंट्रीब्यूट टू Pseudomonas aeruginosa इन्फेक्शन. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द विरुलेंस फैक्टर्स दैट मेक Pseudomonas aeruginosa अ सीरियस पैथोजन. तो हाउ इज Pseudomonas aeruginosa a serious pathogen? तो इट हैज़ सेवरल virulence factors which help Pseudomonas to spread in the tissues, cause infection and cause deadly infections. So it has several virulence factors in the cell wall itself, that is the pili. The pili will help it in adhesion to the tissues. Then the slime layer, the capsular slime around the bacilli, it is antiphagocytic, so that is another virulence factor. फिर lipopolysaccharides, endotoxin, फिर pyocyanin, the pigment, वो भी एक विरुलेंस फैक्टर है. फिर टॉक्सिन्स है Pseudomonas के पास, एक्सोटॉक्सिन ए, एक्सोटॉक्सिन एस एंड टी. फिर एंजाइम्स है इलास्टेस, एल्कलाइन प्रोटीएस, फॉस्फोलाइपेस सी और रैमनोलिपिड. तो ये सारे उसके विरुलेंस फैक्टर्स हैं. ठीक है. सम सेल वॉल कंपोनेंट्स, some toxins and some enzymes. These are all virulence factors. Then the third question is, what are the mechanisms of antibiotic resistance demonstrated in Pseudomonas aeruginosa? So our books have mentioned at least 3 mechanisms of drug resistance in Pseudomonas aeruginosa. One is intrinsic resistance. Intrinsic resistance means Pseudomonas by nature has a resistance towards certain drugs, that it does not allow those drugs to act. So that is intrinsic resistance. By nature it is resistant to those drugs. फिर दूसरा mechanism है जीन में म्यूटेशन होना. There can be mutations occurring in Pseudomonas strains which leads to acquiring drug resistance. Then there is one more property, that is production of beta lactamases. Lots of gram negative bacilli, E. coli, Klebsiella Pseudomonas, they all produce beta lactamases, and these beta lactamases, they destroy the beta lactam ring of penicillin.
which leads to drug resistance in the bacteria. So documented mechanisms of drug resistance in Pseudomonas, at least 3 we have. एक तो इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस, दूसरा जीन में म्यूटेशन और तीसरा बीटा लैक्टमेसिस, right? 3 mechanisms we know. Then the fourth question is, how will you prevent nosocomial infections caused by Pseudomonas aeruginosa? So how to prevent the nosocomial infections? एक तो प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन, यानी कि दूसरे पेशेंट से या डॉक्टर्स या जो स्टाफ है उससे पेशेंट को सुडोमोनास ना लगे, ठीक है, क्रॉस इन्फेक्शन ना हो. फिर दूसरा इक्विपमेंट्स वगैरह जो हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं वो इक्विपमेंट्स का कंटेमिनेशन ना हो, टेकिंग केयर दैट द इक्विपमेंट्स आर नॉट कंटेमिनेटेड, taking care that all these surfaces in the hospital they are not contaminated by Pseudomonas. फिर using antibiotics very judiciously. Unrequired use होगा तो that will also contribute to increasing drug resistance. So judicious use of broad spectrum antibiotics. फिर reducing the hospital stay, जितना ज़रूरी है उतना ही पेशेंट को हॉस्पिटल में रखना, क्योंकि जितना लॉन्गर स्टे होगा उतना उसका रिस्क ऑफ एक्वायरिंग इन्फेक्शन बढ़ेगा. फिर वैक्सीन्स का भी इवैल्यूएशन हुआ है कि जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है ऐसे कुछ केसेस में वैक्सीन देने के लिए भी स्टडीज़ हुई है. फिर प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट होगा तो दैट विल हेल्प ए गुड इम्यून सिस्टम एंड दैट विल हेल्प प्रिवेंट नोजोकोमियल इन्फेक्शंस. सो दिस आर वेरियस फैक्टर्स विच कैन हेल्प टू प्रिवेंट नोजोकोमियल इन्फेक्शंस बाय सुडोमोनास. फिर एक एक्स्ट्रा पॉइंट कि सुडोमोनास कॉजेज नोजोकोमियल इन्फेक्शन, तो कैन यू गिव एग्जांपल्स ऑफ सम अदर बैक्टीरियाज विच कॉज नोजोकोमियल इन्फेक्शंस. तो एक स्टेफाइलोकोकस है, उसमें भी स्टेफाइलोकोकस में वो MRSA होता है ना, मिथाइलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. फिर कोएगुलेस नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई भी होते हैं, ठीक है, तो वेरियस स्टेफाइलोकोकल स्पीसीज. फिर इकोलाई, क्लेप्सिला, प्रोटियस, सिरेशिया, एंट्रोबैक्टर, एंट्रोकोकस. फिर फंगस में कैंडिडा. दिस आर ऑल कॉमन कॉजेज ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन. तो मतलब सुडोमोनास के अलावा स्टेफाइलोकोकस, इकोलाई, क्लेप्सिला, प्रोटियस, एंट्रोकोकस, एंट्रोबैक्टर, सिरेशिया ये सब, और फंगस में कैंडिडा, दिस आर ऑल वेरियस कॉजेज ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शंस. इसके अलावा दूसरे भी होते हैं पर लेस कॉमन होते हैं वो. So here we finish Pseudomonas case discussion.